Hello students, beta in this video we are going to study about angular momentum. Angular momentum symbol is L. Angular momentum linear momentum ਦਾ rotational analog है बेटा. ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ p ਹੁੰਦਾ ਨਾ p ਉਸ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲੋਗ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. एंगुलर मोमेंटम एल रोटेशनल एनालॉग मैं की बोल रहे हैं रोटेशनल एनालॉग मतलब इन लीनियर मोशन we use linear momentum and in rotational motion we use rotational motion we use angular momentum. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ. ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ. ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ. ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ. ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ. ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਸ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਿੰਬਲ p. ਬਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਜਿੰਨਾ L ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ. ਜਿੰਨਾ L ਸਮੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਛੇਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਘੱਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਛੇਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ. ਉਹ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ L ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ. ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ L ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ momentum tells us the quantity of rotation contained in a body. एक body च कितना quantity rotation है that is tell us by angular momentum. Clear? And it may be calculated by the cross product of position vector and linear momentum of body. ठीक है. मतलब एंगुलर मोमेंटम जिमें तुसी ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਸ ਤੇ v ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ. ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ. ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ. ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰੋਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ.
मतलब ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बेटा पोजीशन वैक्टर तो लीनियर मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये फार्मूला आप ड्राइव भी करांगे जो आप एंगुलर मोमेंटम के पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्राइव करांगे ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स से फार्मूला बनेगा। वट इज़ आर पोजीशन वैक्टर, वट इज़ पी बॉडी का लीनियर मोमेंटम, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, एंगुलर मोमेंटम वह फार्मूला एक तो आ हो गया आर क्रॉस पी। ठीक है, वट इज़ आर पोजीशन वैक्टर, वट इज़ पी लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, बॉडी का लीनियर मोमेंटम। क्लीयर बेटा। अच्छा जिमें टॉर्क का फार्मूला होंगे ना, टॉर्क का आर क्रॉस एफ, बस टॉर्क का रिलेशन फोर्स नाल है, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लीनियर मोमेंटम है। ये याद रखो, सेम कंसैप्ट है। टॉर्क का रिलेशन फोर्स नाल है आर क्रॉस एफ, एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लीनियर मोमेंटम नाल है आर क्रॉस पी। तो जिमें टॉर्क नूं तुसीं लिख लेंदे सीगे आर एफ साइन थीटा, उमें तुसीं एंगुलर मोमेंटम नूं भी लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। ये सारे फार्मूले बनावांगे आप। क्लीयर बेटा, कोई कन्फ्यूजन? एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स वैसे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं दस दिना SI सिस्टम आर पी साइन थीटा फार्मूला। आर इज़ पोजीशन वैक्टर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस दोगे मीटर्स, मोमेंटम दे लीनियर मोमेंटम के यूनिट्स होंगे ने किलोग्राम मीटर पर सैकेंड, साइन थीटा के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, तो एंगुलर मोमेंटम के बन गए किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। ठीक है, CGS सिस्टम भी बना सकते हैं। CGS सिस्टम किलोग्राम दिएगा, ग्राम मीटर दिएगा, सेंटीमीटर। डिमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हो, सौखे सौखे चीज़ा नहीं, दैट्स मैं फटाफट दस रहा। डिमेंशनल फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का आर पी साइन थीटा। आर इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिमेंशनल फार्मूला L, पी इज़ मोमेंटम, मोमेंटम का डिमेंशनल फार्मूला ML T-1। साइन थीटा का कुछ नहीं होता है ना, ये बन जाएगा ML2 T-1 इज़ द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा जिमें टॉर्क का फार्मूला होंदा सी ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उमें एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होएगा लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सारे आप बनावांगे फार्मूले, थोड़ी देर तक ड्राइव कर दें। ठीक है, ये सारे फार्मूले डिस्कस करांगे आप, आ भी ड्राइव करांगे, आ वाला फार्मूला भी ड्राइव करांगे, आ भी ड्राइव करांगे, आ भी ड्राइव करांगे, है ना। जिमें टॉर्क का बस टॉर्क का रिलेशन फोर्स नाल है, एज टॉर्क इज़ रिलेटेड विद फोर्स, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज़ रिलेटेड विद लीनियर मोमेंटम। टॉर्क के फार्मूले फोर्स आंदा हुंदा है, एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले लीनियर मोमेंटम आंदा हुंदा है। ठीक है, तो तुसीं ये फार्मूला एवं भी याद रख सकते हो। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला की हुंदा MV, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ R, सो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तुसीं एवं भी याद रख सकते हो MVR। M हो गया बॉडी का मास, V होगी बॉडी की वेलोसिटी, R हो गया डिस्टेंस। ठीक है बेटा, सो पता चलिया भी एंगुलर मोमेंटम की दसदा है। एंगुलर मोमेंटम सानू दसेगा बॉडी च किन्नियां क्वांटिटीज़ रोटेशन दियां हैगियां ने। जिन्नी L की वैल्यू ज़्यादा होएगी वो बॉडी ज़्यादा देर तक रोटेट करेगी, जिहदी L की वैल्यू घट होएगी वो बॉडी छेती रुक जाएगी। लीनियर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम कन्फ्यूजन ना रखियो। लीनियर मोमेंटम मोशन बारे दसदा है, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन बारे दसदा है, रोटेशन बारे। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला MV, एंगुलर मोमेंटम के कई फार्मूले ने, R क्रॉस P भी है ना, R क्रॉस P भी है, RP साइन थीटा भी है, MVR भी है ना, बहुत सारे फार्मूले हैं। हुण आपां जिमें जिमें रिलेशन नहीं होंदा बेटा फोर्स का मोमेंटम नाल, फोर्स का मोमेंटम नाल F इज़ इक्वल टू dP/dt, फोर्स का मोमेंटम नाल। सैकेंड लॉ सी बेटा ये न्यूटन सैकेंड लॉ है ना, उमें टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम नाल भी रिलेशन होता है, सेम रिलेशन होता है, टॉर्क इज़ इक्वल टू DL/dt। ये ड्राइव करांगे आप, हुण ही करदे। मैं तुहानूं दस्सिआ है भी जिमें फोर्स इज़ इक्वल टू dP/dt होंदा है, फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम, उमें फोर्स दी जगह टॉर्क इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दी जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स नाल लीनियर मोमेंटम, टॉर्क नाल एंगुलर मोमेंटम। फोर्स इज़
equal to rate of change of linear momentum with respect to time and torque is equal to rate of change of angular momentum with respect to time. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ we are going to drive the relation between torque and angular momentum L। ये रिलेशन बना रहे हैं बेटा, ठीक है? ओके, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ as we know that L is equal to R cross P है। definition के according to the definition L is equal to R cross P। derivative both sides with respect to T, derivative both sides with respect to time। तो बेटा इधर भी डेरिवेटिव कर दो, इधर भी डेरिवेटिव कर दो। दोनों पासे डेरिवेटिव हुण इत्थे बोथ आर वेरीएबल एंड दोनों च प्रोडक्ट है। चेन रूल लगेगा, चेन रूल। मैथमेटिकल टूल्स मैं थोनू चेन रूल करवाया सीगा बेटा। वो रूल ये हुंदा सी भी पहला जे दो टर्म्स मल्टीप्लाई दा साइन है, मल्टीप्लाई दा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर विच प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल सीगा बेटा चेन रूल। याद है किसी दे? जिदे नहीं याद बेटा वो मैथमेटिकल टूल्स दियां डेरिवेटिव वाला टॉपिक सी ना, डेरिवेटिव वाला, उस दियां वीडियोस चेक करो, थोड़ा उस चेन रूल करवाया हुआ है भी अगर दो फंक्शनस आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ आर वेरीएबल, दोनों वेरीएबल होन तो आपस में मल्टीप्लाई होन तो चेन रूल लगता होंगे। पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जो बेटा दोनों मल्टीप्लाई होन तो मल्टीप्लाई होंगे, जिमें इत्थे आ दोनों मल्टीप्लाई है तो उरे भी मल्टीप्लाई है, उरे भी मल्टीप्लाई है। जो दोनों क्रॉस होन, क्रॉस फिर इत्थे भी क्रॉस लगेगा। जिमें सपोज करो अगर एवें हुंदा dy/dt ऑफ m क्रॉस n, फिर इत्थे भी क्रॉस लगता, उरे भी क्रॉस लगता, उरे भी क्रॉस लगता। मतलब जो सिंबल उरे हुंदा है अगर उरे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ये भी मल्टीप्लाई होएगा, ये भी मल्टीप्लाई। बट अगर उरे सिंबल क्रॉस का बेटा तो उरे भी सिंबल क्रॉस, उरे भी क्रॉस। तो अपने को इत्थे क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस का आप आ वाला रूल यूज़ करांगे, बट इत्थे मल्टीप्लाई नहीं पावांगे, क्रॉस पावांगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस च फर्क होंदा है। मल्टीप्लाई तो सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब वैक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस इज़ अ वैक्टर प्रोडक्ट। थोनू पता है, मैं थोनू ऑलरेडी पहले सारा कुछ दस्या होया है। वैक्टर चैप्टर में थोनू डॉट प्रोडक्ट भी दसी है, वैक्टर चैप्टर में थोनू क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाई है ना बेटा। हाँ बस वही टॉपिक्स यूज़ हो रहे हैं। फिजिक्स एवें नहीं होंदा भी आपां एक चैप्टर कर लिया जी उहदे क्वेश्चनस उत्थे ही होणगे बस। फिजिक्स तो बेटा जिहड़ा चैप्टर तुसीं कर लिया पता नहीं उस चैप्टर के टॉपिक्स कित्थे 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 यूज़ होणगे, अलग फरदर किहड़े किहड़े टॉपिक्स चो वाला टॉपिक यूज़ हो सकदा। ओके, तो कोई क्रैमिंग नहीं करनी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पाना है, विच तो हमेशा प्लस ही पेगा बेटा। मल्टीप्लाई है तो इत्थे मल्टीप्लाई पाना है, जे क्रॉस है तो उरे क्रॉस पाना है। अपने कोल क्रॉस है तो आप ये रूल इस तरीके नाल लगावांगे, इस तरीके नाल विच क्रॉस पा के। ओके, तो यह बन जाएगा बेटा dy/dt ऑफ L। पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ क्रॉस फर्स्ट का डेरिवेटिव। पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ क्रॉस फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, हम थोड़ी चेंजेस कर दें बेटा अकॉर्डिंग
to Newton's second law. Sorry. L R cross dp by dt, rate of change of linear momentum with respect to time, force ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ. dp by dt is known as force plus linear momentum ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mv, rate of change of distance with respect to time, velocity ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, rate of change of momentum with respect to time force ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ dp by dt ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ force ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ. ਇੱਕ rate of change of distance with respect to time, r is distance ਨਾ ਬੇਟਾ, r is a distance, rate of change of distance with respect to time, velocity ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਬੇਟਾ r cross dp by dt ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ f plus ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ. ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. r cross f ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ. ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r cross f. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ. r cross f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਾਰਕ. ਦੋ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੋ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੋ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ. ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਏਗਾ. ਥੀਟਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ v cross v ਨੂੰ v ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਬਣ ਜਾਏ. ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 0, ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ, 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ 0. ਦੋ ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. v cross v 0, ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dl ਬਾਈ dt. ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ. ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚੇਨ ਰੂਲ, ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਸ. ਓਕੇ, ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਤਾ. dp ਬਾਈ dt ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ. p ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ. ਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0, r cross f ਟਾਰਕ, ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਟਾਰਕ. ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਟਾਰਕ. ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਰਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ. ठीक है. पावर की डेफिनेशन तो सेम है बेटा. रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर. ठीक है. सो पावर का फार्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. अच्छा, वर्क डन किस दे इक्वल होंगे बेटा? वर्क डन इन रोटेशनल मोशन. इन रोटेशनल मोशन वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर मोशन in linear motion work done on the force into distance, and in rotational motion work done is equal to torque into theta. तो work done की वैल्यू जो आप ऊपर पुट करांगे, torque into theta. force दी जगह torque, linear displacement दी जगह angular displacement, है ना. torque नू अगर बाहर कढ़िए, d by dt of theta. rate of change of angular displacement with respect to time is known as angular velocity. याद है बेटा? यूनिट थर्ड च किया सी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी होंगे, है ना. तो पावर का फार्मूला बन जाएगा टॉर्क इनटू ओमेगा. मतलब जिमें इन लीनियर मोशन पावर का फार्मूला होंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, वी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा. लीनियर फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी.
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਰਕ ਆਇਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, force is replaced by torque and linear velocity is replaced by angular velocity। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਟਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।